Hello everyone, welcome back to the channel, and this is the day 5 video of 100 question practice PD, which we have already started. We have already discussed in the 4 sessions 50 questions, and we have discussed already 50 questions in the previous 4 sessions, and we are starting from question number 51 in this session, that is from day 5, that is part 5. And those who are not watching the previous 4 sessions, I am requesting you to all please watch the previous 4 videos or previous 4 parts for your practice on PD for upcoming CSR net exam and GATE exam, and this will be very helpful for your daily practice questions. Okay, so let's start question number 51 and onwards. And before starting, I am requesting you to all those who are new in my channel, please like the video, comment if you have any doubt in the comment section below, and subscribe the channel. Okay, so let's start question number 51. Question number 51 says that the expression 1 by dx square minus dy square sine of x minus y is equal to, the question is 1 by dx square minus dy square sine of x minus y, this is equal to what? 4 options are given in the question. So let's see. First, we note that for the case of sine and cos, for sine of x, the general form is sine of ax plus by or cos of ax plus by. We replace dx, means we all know that dx stands for del x and dy stands for del y. Okay, so dx square means your del x, del 2 del x2 and del 2 del y2. Okay, so this is the partial differential equation terms, and for case of sine and cos, we replace d of x square, this is equal to minus of a square, and d of y square, this is equal to minus of b square whenever the denominator is non-zero. Okay, for denominator non-zero, and when denominator equal to 0, then general case we can apply here is that we multiply numerator by x and differentiate the denominator by y. And here if we put sine of x, that means here a equal to 1 and b equal to minus 1. Okay, so if we replace dx square minus dy square, this is equal to minus of 1 square minus and minus of minus 1 square. Okay, so this is equal to minus 1 square minus plus 1 square minus 1 whole square. This means 1 square minus 1 square plus 1 square, this is equal to 0. That means we can't apply this process. Okay, so we have to multiply x and differentiate the denominator with ddx with respect to x, or we multiply the denominator by y and differentiate the new denominator by y. Okay, so we apply here, we multiply the numerator by x and differentiate the denominator with respect to x. So this, if we differentiate this ddx, so this gives 2 dx, and dy is constant. If we differentiate with respect to x, that means this term goes to 0, and this is equal to sine of x minus y. Now dx means simply here we do the integration with respect to x of this term, that means sine of x minus y, this integration of this term. Okay, so this is equal to x by 2 into sine x by 2, xy means here y is constant, so terms as a treat as a constant. Okay, so this gives simply minus cos of x minus y. Okay, so this is minus x by 2 cos of x minus y. Okay, so this is the answer for this problem, option number A. Okay, so option A is correct here. Now go to the next question, question number 52. Okay, question 52. Question 52 says that a general solution of the second order equation 4uxx minus uyy, 4uxx minus uyy, this is equal to 0 of the form f and g are twice differentiable. Okay, so देखो यहाँ पे क्या हुआ, if we replace uxx by m and uyy by 1, that is if we replace this del 2 del x2 and d dash, this is equal to del 2 del y2. So in case we solve this by using
the complementary function and particular integral. Here 0 is the right side is 0, that means the complementary function is the complete solution for this problem. Okay, so now if we put d equal to m and d dash equal to 1, so we get 4m square minus 1, this is equal to 0, that means we get m equal to plus minus 1 by 2. Okay, so now in this case the solution is of the form, general solution is of the form u equal to f of y plus mx plus, so y plus mx, so this is equal to y plus m1x and plus f of y plus m2x. Okay, so this is equal to f of, this is a g कर दो इसको, so f of y plus half x plus g into y minus 1 by 2 into x. Okay, so यहाँ पर देखो y plus half into, if we multiply these functions by 2, then this will be, there will be no change in the function, so we can already also write 2y plus x plus g of 2y minus x. Okay, so this is the general solution. Or this can also, if we multiply by minus 1, then there will be no change in the function, so this is equal to f of x plus 2y प्लस जी ऑफ, क्योंकि ये जी एक फंक्शन है, ठीक है, x माइनस 2y, ये भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो होगा, देखो ये इसका जो होगा आंसर होगा, ठीक है। तो देखो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, x प्लस 2y का एक फंक्शन एंड एक x माइनस 2y का फंक्शन, ठीक है। तो देखो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे क्लियरली करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो एफ जी तो आर्बिट्ररी फंक्शन है, ठीक है, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 53 का क्वेश्चन क्या है, द जनरल सॉल्यूशन फॉर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेल टू जेड, देखो डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका सिर्फ पार्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग निकालेंगे तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। देखो तो 1 बाई डी डैश इंटू ऑन एक्स प्लस वाई, तो इसका सिर्फ पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, देन इसका पूरा के पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सी तो कोई नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखो 1 बाई डी डैश मीन्स 1 बाई डी इंटू 1 बाई डी डैश मीन्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, इंटू डी वाई, ठीक है। एंड यहाँ पे सिर्फ एक्स कॉन्स्टेंट है, तो इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट को हम लोग लेंगे यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो देखो दिस इज इक्वल टू 1 बाई डी इंटू इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई मीन्स एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ एक्स, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1 बाई डी मीन्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है, प्लस देखो यहाँ पर y कॉन्स्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट को हम लोग लेंगे जी वाई, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस, देखो ये तो फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स का इंटीग्रेशन है, तो ये फंक्शन ऑफ एक्स ही रहेगा, यहाँ पर इसको एफ डैश कर दो, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, एफ एक्स प्लस ये जी वाई, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2 एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एफ एक्स प्लस जी वाई, ठीक है। तो ये जो होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। देन इट कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 हो गया, 54 होगा, क्वेश्चन 54, ठीक है। क्वेश्चन 54 जो होगा वो देखो क्या होगा, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 36 डेल टू जेड डेल एक्स स्क्वायर, 36 डेल टू जेड डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई टू द पावर 14 डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई, सॉरी दिस इज डेल वाई टू माइनस 7 वाई टू द पावर 13, 7 वाई टू द पावर 13 डेल जेड डेल वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। आर गिवन बाई, इसका जो निकलना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकलना है, मतलब आर एस टी को फर्स्ट निकलना है कि क्या था इक्वेशंस, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ एक्स वाई जेड
पी क्यू, ये था इक्वेशन। तो आर मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड आर मीन्स उसका कोएफिशिएंट, सो कैपिटल आर इक्वल टू होगा यहाँ पे 36 ये वाला, ये होगा टी, सो कैपिटल टी इक्वल टू होगा माइनस वाई टू द पावर 14 एंड जो एस होगा, ये एस का तो टर्म नहीं है यहाँ पे, कैपिटल एस इक्वल टू 0 होगा। एंड जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था वो था आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इज इक्वल टू 0। सो आर लैम्डा स्क्वायर मीन्स 36 लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा मीन्स 0 प्लस टी मीन्स माइनस, तो ये माइनस लिख देते हैं वाई टू द पावर 14 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू वाई टू द पावर 14 बाई 36। सो दिस इम्प्लाइज लैम्डा इक्वल टू होगा प्लस माइनस वाई टू द पावर 7 बाई 6। ठीक है, तो ये आ गया लैम्डा का वैल्यू। ठीक है, नाउ जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व होगा वो कैसे लिखेंगे, डी वाई डी एक्स प्लस लैम्डा दिस इक्वल टू 0। ठीक है, तो फास्ट एक लेंगे वाई टू द पावर 6 वाई टू द पावर 7 प्लस 6, दिस इम्प्लाइज डी वाई डी एक्स प्लस वाई टू द पावर 7 by 6 this is equal to 0 and this gives we get dy by y to the power 7 plus dx by 6 और 6 को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, this is equal to 0 integrating we get 6 into y to the power minus 7 plus 1 by minus 7 plus 1 plus x is equal to 0. Okay, so this implies 6 into 1 by minus 6 y to the power 6 प्लस x इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो ये क्या आ रहा है, 6 से 6 कैंसिल हो रहा है, माइनस वाई टू द पावर 6, तो x माइनस वाई टू द 1 बाई वाई टू द पावर 6 इज इक्वल टू C1। आंसर नहीं आ रहा है यहाँ पे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक, तो देखो ये आ रहा है। ठीक है, x माइनस 1 बाई वाई टू दी पावर 6 दिस इज इक्वल टू C1, ये एक आ रहा है। एंड और एक क्या आएगा, यहाँ पे सिर्फ देखो यहाँ पे सिर्फ क्या था, प्लस था यहाँ, मतलब यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आएगा। ठीक है, तो और जो एक इक्वेशन आएगा x प्लस 1 बाई वाई टू दी पावर 6 इज इक्वल टू C2, तो ये जो दो इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, x माइनस 1 बाई वाई टू दी पावर 6 एंड x प्लस 1 बाई वाई टू दी पावर 6, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन ए क्लियरली करेक्ट है। ठीक है, दे नेक्स्ट क्वेश्चन 54 हो गया, क्वेश्चन 55 होगा यहाँ पर, क्वेश्चन 55। क्वेश्चन 55 क्या है, देखो द सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1 माइनस रूट एक्स वाई डेल टू डेल एक्स टू, और क्वेश्चन जो है 1 माइनस रूट ऑफ एक्स वाई डेल टू यू डेल एक्स टू प्लस 2 डेल टू यू 2 डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई प्लस 1 प्लस रूट एक्स वाई डेल टू यू डेल वाई टू दिस इज इक्वल टू 0। ऑप्शन जो 4 गिवन है, हाइपरबोलिक इलिप्टिक इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे यहाँ से फर्स्ट एस स्क्वायर माइनस, तो दिस इज ए होगा आर, ए होगा एस एंड ये होगा टी। ठीक है, तो एस स्क्वायर माइनस 4RT को निकलते हैं। ठीक है, एस स्क्वायर माइनस 4RT क्या होगा, 4 माइनस 4 इंटू आर मीन्स 1 माइनस रूट ओवर एक्स वाई एंड टी मीन्स 1 प्लस रूट ओवर एक्स वाई। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इंटू ये दोनों तो हो जाएगा 1 माइनस सिंपल एक्स वाई। ठीक है, तो देखो 4 कॉमन तो 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ठीक है, सो 4 इंटू 1 कैंसिल एक्स वाई हुआ सिर्फ। ठीक है, तो 4xy ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा व्हेन ओनली x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 बोथ ग्रेटर देन 0 और बोथ xy लेस देन 0। दैट मीन्स दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो देखो ये हाइपरबोलिक होगा एंड हाइपरबोलिक ही बोला है ऑप्शंस में, इलिप्टिक होगा, ये लेस देन होगा कब, इफ x ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0 और x लेस देन 0 y ग्रेटर देन 0, मतलब ये सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट।
ठीक है। तो ये यहाँ पर जो ऑप्शन बी में कि मैंने बोला है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ये तो गलत है एंड हाइपरबोलिक होगा। ये फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब इसका जो होगा ऑप्शन डी करेक्ट है क्लियरली। ठीक है, इजी क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन 56। ठीक है, तो क्वेश्चन 56 क्या बोला है, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डेल टू यू डेल एक्स टू, क्या बोला है, एक्स डेल टू यू डेल एक्स टू प्लस 2xy डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई, 2xy डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई प्लस y डेल टू यू डेल वाई टू प्लस y डेल टू यू डेल वाई टू। फिर जो है उसका हम लोग का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ इसका ही ज़रूरत है। ठीक है, तो ये बोला है इलिप्टिक, इलिप्टिक, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक कौन सा क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं एस स्क्वायर माइनस 4RT, एस स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स इंटू वाई, दिस इम्प्लाइज 4xy कम xy माइनस 1। ठीक है, तो देखो ये फर्स्ट आते हैं इलिप्टिक कब होगा, इलिप्टिक होगा जब एक्स वाई चारों के चारों ऑप्शन में ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, मतलब इसके लिए कोई एक्स वाई तो ग्रेटर देन 1 है, मतलब जो कंडीशंस बनेगा वो सिर्फ एक्स वाई के ऊपर बनेगा। ठीक है, ये ग्रेटर देन 1 बोला ही है एक्स वाई के ऊपर, तो एक्स वाई ग्रेटर देन 0 कब होगा, इफ एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0 और बोथ लेस देन 0। ठीक है, लेस देन 0 कब बनेगा, इफ एक्स ग्रेटर देन 0 वाई लेस देन 0 और एक्स लेस देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0, इन दोनों केस में बनेगा। एंड पैराबोलिक कब बनेगा, पैराबोलिक जब पैराबोलिक होगा इक्वल टू 0 कब होगा, बोथ एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0, और एक्स कैन बी एक्स आइदर ये हो सकते हैं, आइदर एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन से इलिप्टिक इन द रीजियन एक्स लेस देन 0 वाई लेस देन 0, इस रीजियन में बोला इलिप्टिक, ये तो कभी नहीं बनेगा। देन इलिप्टिक इन एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0, ये बोला ये भी कभी नहीं बनेगा। पैराबोलिक तो नहीं बनेगा, नॉन जीरो केस में हाइपरबोलिक इन द रीजियन लेस 0 लेस 0। ठीक है, तो इस केस में हाइपरबोलिक की केस बोला है। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, मतलब ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 57 का क्वेश्चन क्या बोला है, देखो द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेल टू यू डेल वाई टू माइनस वाई डेल टू यू डेल एक्स टू इक्वल टू 0 हैज टू फैमिलीज ऑफ रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर वाई लेस देन 0। देखते हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कर्व को यहाँ पे से निकलते हैं। ठीक है, तो देखो डेल टू यू डेल एक्स टू माइनस वाई डेल टू यू डेल वाई टू दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज गिवन है। देखो यहाँ से r का वैल्यू क्या है 1, s का वैल्यू तो नहीं है 0 एंड t का वैल्यू जो है माइनस ऑफ y, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, देखो तो r लैम्डा स्क्वायर प्लस s लैम्डा प्लस t, दिस कैरेक्टरिस्टिक कर्व का इक्वेशन, दिस इज इक्वल टू r मीन्स लैम्डा स्क्वायर प्लस 0 माइनस y, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू y, दिस मीन्स lambda equal to plus minus root over of y, this is the value of lambda. Now क्या होता है dy dx plus lambda equal to 0. Now if we put plus root y, so dy dx plus root over of y, this is equal to 0. This implies dy by root y plus dx, this is equal to 0. If we integrate, then we get y to the power माइनस आपका इंटीग्रेशन y टू द पावर माइनस ऑफ प्लस 1, तो y टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाई माइनस हाफ प्लस 1 प्लस x इज इक्वल टू c1, दिस मीन्स माइनस ऑफ सो माइनस 2 बाई दिस इज माइनस 1 बाई प्लस 1 बाई 2, सो 1 बाई 2 ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 बाई दिस गिव्स रूट वाई, 2 रूट वाई प्लस एक्स दिस इक्वल टू c1। ठीक है, एंड और एक जो आएगा वो क्या आएगा, देखो यहाँ से ये आ रहा है यहाँ पे, सो वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू 4y दिस इज इक्वल टू c1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो ये एक कर्व बन गया। ठीक है, देन देखो स्क्वायर करके
देन और एक जो कर्व बनेगा वो क्या बनेगा, देखो और एक जो कर्व बनेगा यहाँ से, और एक चीज देखो यहाँ पे, ये जो रूट ऑफ वाई है ये सिर्फ हम लोग सॉल्यूशन कब निकाल सकते हैं, फॉर वाई ग्रेटर देन जीरो, बट इफ वाई लेस देन जीरो होता है तब इसका इंटीग्रेशन हम लोग नहीं कर सकते फॉर रियल केस, ठीक है। तो रियल सॉल्यूशन इसका होगा फॉर वाई ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे सिंस यहाँ पे ऑप्शंस में रियल सॉल्यूशन की बात की है एंड ऑप्शन जो मतलब वाई के रिगार्डिंग कुछ कंडीशंस गिवन है, ठीक है। तो देखो वाई ग्रेटर देन जीरो होगा तभी इसका सोल्यूशन यहाँ से रियल सोल्यूशन निकलेगा इसका, ठीक है, नहीं तो इसका रियल सोल्यूशन कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो मतलब जो ऑप्शंस ए में बात की है वो बोला है टू फैमिलीज ऑफ रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर वाई लेस देन जीरो, बट वाई लेस देन जीरो के लिए यहाँ पे सोल्यूशन कभी नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि वाई लेस देन जीरो का तो रूट वाई रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। इसके लिए इसका ऑप्शन ए डिस्करेक्ट हो जाएगा, नो रियल कैरेक्टरिस्टिक फॉर वाई ग्रेटर देन जीरो। देखो फॉर वाई ग्रेटर देन जीरो एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो आ ही गया, मतलब ये भी फॉल्स ऑप्शन है। देन बोला है वर्टिकल लाइंस एज अ फैमिली फॉर कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर वाई इक्वल टू जीरो, पर देखो यहाँ पे वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा तब भी ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब इसका सी ऑप्शन भी रिस्क रहेगा। एंड डी ऑप्शन में बोला है क्या, बोला है इसका जो बनेगा ब्रांचेस ऑफ क्वाड्रेटिक कर्व्स एज कैरेक्टरिस्टिक फॉर वाई नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसका देखो ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा इसका, बाकी तीन ऑप्शन तो गलत हो रहा है। यहाँ से एक क्वाड्रेटिक तो बन रहा है एक्स के ऊपर एंड और एक जो बनेगा वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्वाड्रेटिक बनेगा फॉर लैम्डा इक्वल टू माइनस वाई, इसी तरीके से हम लोग रूट ओवर ऑफ माइनस वाई इसी तरीके से इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट मिनट, वी डू करेक्ट सोल्यूशन और नॉट। हाँ ठीक है ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 57 हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में, ठीक है। क्वेश्चन 58 क्या है, देखो इफ यू एक्स टी सेटिस्फाइज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेल टू यू डेल टी टू दिस इज इक्वल टू 4 डेल टू यू डेल एक्स टू, ठीक है। यू एक्स टी कैन बी ऑफ द फॉर्म, इसका सॉल्यूशन कौन सा फॉर्म हो सकता है वो यहाँ पे पूछा है, ठीक है। तो सो इफ वी राइट डी इक्वल टू डेल डेल एक्स एंड डी डैश दिस इक्वल टू डेल डेल टी, तो देखो डी का वैल्यू जगह एम पुट करेंगे एंड डी डैश की जगह 1 पुट करेंगे तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा 1 इक्वल टू 4m स्क्वायर, दैट मीन्स एम इक्वल टू प्लस माइनस हाफ, ठीक है। एंड एम इक्वल टू प्लस माइनस हाफ बनेगा एंड इसका जो राइट साइड होगा इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डेल टू यू डेल टी टू माइनस 4 जो होगा डेल टू यू डेल एक्स टू दिस इक्वल टू जीरो। राइट साइड में तो कोई टर्म नहीं है, मतलब इसका सिर्फ जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा वही इसका जनरल सोल्यूशन होगा, तो इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल मतलब सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का फॉर्म कैसा आएगा, सो जनरल सोल्यूशन यू इक्वल टू आ सकता है एफ ऑफ y प्लस m1x मीन्स हाफ x प्लस g इंटू वाई प्लस m2x मीन्स माइनस ऑफ हाफ x, ठीक है। तो ये इसका फॉर्म आएगा, मतलब जो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ वाई 2y प्लस एक्स प्लस जी ऑफ 2y माइनस एक्स, ठीक है। देखो इसका जो फॉर्म आएगा, सॉरी यहाँ पे y तो नहीं है t है, टी 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 टी, ठीक है। तो 2t प्लस एक्स, देखो इसका ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन सी को देखो 2x माइनस 40x प्लस 2t, तो इसको g को जो लिख सकते हैं हम लोग ए से मतलब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये x माइनस 2t या 2t माइनस एक्स का फंक्शन रहेगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ x प्लस 2t प्लस जी ऑफ, इसका चेंज भी कर सकते हो इसका नाम मतलब फंक्शन का नाम x माइनस 2t, ठीक है। तो ये एक फंक्शन बनेगा, मतलब ऑप्शन सी तो एक बनेगा एंड यहाँ से देखो 2 से और एक मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, जो किया है 2x माइनस 40 लिखा है यहाँ पे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं 2x माइनस 40, ठीक है। तो ये जो बनेगा ऑप्शन सी इसका तो एक बनेगा ऑप्शन x प्लस 2t, ठीक है, ऑप्शन सी। देखो एंड ऑप्शन जो है
बाकी ऑप्शन बी तो टी स्क्वायर का फॉर्मेट है, ये तो नहीं बनेगा, एंड डी भी इसका नहीं बनेगा, 2x माइनस टी तो नहीं बनेगा, x माइनस टू टी बन रहा है। एंड देखो ऑप्शन ए में देखो एफ ऑफ एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स माइनस टू डी है, एफ ऑफ एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस टू डी है। देखो ये तो एफ जो है और जी भी लिख सकते हो, कोई मतलब नहीं है, नाम का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो ई टू दी पावर एक्स माइनस टू डी मीन्स ये भी एक एक्स माइनस टू डी का फंक्शन बन रहा है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन रहा है, बट एक्स माइनस टू डी का फंक्शन तो है, तो ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन भी यहाँ से करेक्ट हो जाए इसलिए, ठीक है। ये फंक्शन से मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी बन सकते हैं, क्योंकि ए एंड जी जो है वो आर्बिट्ररी फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा ए एंड सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 में आते हैं, देखो 59 ऑप्शंस, द सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई, तो यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई दिस इक्वल टू जीरो, ये तो लैपलास इक्वेशन क्लियरली दिस इज इलिप्टिक होगा फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो इसका लिख लेते हैं एक बार, एस स्क्वायर माइनस 4RT, ठीक है, एस स्क्वायर माइनस 4RT क्या है, एस तो जीरो है यहाँ पे नहीं है, जीरो माइनस 4 यू, अच्छा सॉरी यहाँ पे एक्स था एक, तो एस स्क्वायर माइनस, ये तो लैपलास इक्वेशन नहीं है, तो एस स्क्वायर माइनस 4 इंटू आर इंटू टी, आर मीन्स 1, टी मीन्स एक्स, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 4x। तो ये ग्रेटर देन जीरो होगा कब, इफ एक्स लेस देन जीरो, एंड लेस देन जीरो होगा इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो ग्रेटर देन जीरो होगा एक्स लेस देन जीरो के लिए, मतलब ये हाइपरबोलिक बनेगा फॉर एक्स नॉट इक्वल टू लेस देन जीरो, एंड इलिप्टिक बनेगा फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो देखो ये अब क्या बोला है, हाँ इलिप्टिक एंड हाइपरबोलिक भी है, इलिप्टिक फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे, एंड हाइपरबोलिक फॉर एक्स लेस देन जीरो, मतलब डी करेक्ट है यहाँ पे, तो इसका ए एंड डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 59 हो गया। देन 60, देखो क्वेश्चन नंबर 60 जो है यहाँ पे क्या बोला है, एट पी एक्स वाई बी ए पार्टिकुलर इंटीग्रल बोला है, ठीक है, पी एक्स वाई इज ए पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डेल टू जेड डेल एक्स डेल एक्स टू प्लस डेल जेड डेल वाई, दिस इज इक्वल टू वाई माइनस टू, क्या है गिवन, 2y माइनस वाई स्क्वायर, 2y माइनस वाई स्क्वायर डेल टू एक्स माइनस ये है यहाँ पे डेल टू डेल एक्स टू प्लस डेल जेड डेल वाई, दिस इक्वल टू दिस, इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, तो दिस मीन्स पार्टिकुलर इंटीग्रल दिस इज इक्वल टू 1 बाई डी स्क्वायर माइनस डी, सिंस डी स्टैंड्स फॉर डेल एक्स एंड डी डैश स्टैंड्स फॉर डेल वाई, ठीक है। तो डी स्क्वायर माइनस डी डैश ऑन 2y माइनस क्या है, वाई स्क्वायर है, ठीक है। सो 2y माइनस यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2y माइनस एक्स स्क्वायर हुआ है यहाँ पर, ठीक है, एक बार गलत है सर, ठीक है, इस क्वेश्चन का प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, मेरे को जैसा याद आ रहा है, लेकिन मैंने जब सॉल्व किया था तो ये गड़बड़ आ रहा था, तो ये 2y माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, ऑन 2y माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये होगा इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ से डी डैश 1 बाई क्या करते हैं, डी स्क्वायर लेते हैं एंड 1 माइनस डी डैश बाई डी स्क्वायर, इसका इन्वर्स होगा ऑन 2y माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 बाई डी स्क्वायर इंटू 1 प्लस डी डैश बाई डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर बाई डी टू दी पावर 4, ऐसे ये सीरीज चलेगा, 1 प्लस एक्स का इन्वर्स माइनस एक्स का, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे सीरीज होता है, ठीक है। तो 2y माइनस एक्स स्क्वायर होगा ये, दिस इक्वल टू 1 बाई डी स्क्वायर इंटू, देखो यहाँ से सिर्फ 2y माइनस एक्स स्क्वायर एक होगा, 1 जब ऑपरेट होगा तो 2y माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, और एक देखो डी डैश बाई जो होगा डी स्क्वायर, ये जब होगा देखो यहाँ से अलग से इसको अप्लाई कर लेते हैं, डी डैश बाई डी स्क्वायर ऑन 2y माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी डैश बाई डी स्क्वायर मीन्स क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा एक बार, ठीक है, तो इंटीग्रेशन एक बार होगा तो क्या होगा, 2xy माइनस विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा x³ बाई 3, और एक इंटीग्रेशन होगा तो डी डैश
2x²/2y माइनस x⁴/12। देन देखो डी डैश की रिस्पेक्ट में इसका जो डी डैश की रेस्पेक्ट में मतलब y के रेस्पेक्ट में डी डैश मीन्स डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ये टर्म हट जाएगा एंड सिंपली यहाँ पे x² रहेगा, सॉरी x² रहेगा क्योंकि ये यहाँ पे 1 है, सो प्लस x² होगा यहाँ पे, ठीक है। तो x² से x² कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ 1/d डैश स्क्वायर इंटू 2y है, मतलब इंटीग्रेशन 2 बार होगा तो 1/d इंटू 2xy, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन इजिकल टू 1 और एक बार x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन तो 2 इंटू x²/2 इंटू y, तो ये आया सिंपली x²y, ठीक है। तो P23 का वैल्यू निकलना है, P23 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, तो 2² इंटू 3 दैट मीन्स 12, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा सी। यहाँ पे आंसर जो यहाँ पे क्वेश्चन है जो है वो गलत है, ठीक है, क्योंकि मेरा आंसर नहीं आ रहा था फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे x² होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।